क्या सैलरी से कोई रिच बन सकता है? तो जॉब में क्या होता है, यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी. आप कितना भी अच्छा कर लो, आपकी हर साल इंक्रीमेंटल ग्रोथ उतनी होती है. इफ यू हैव ESOPs, यू कैन बिकम मल्टी मिलियनर्स ऑल्सो. You started your mutual fund journey from just investing 5,000 rupees to now investing 30 lakhs per month. Could you please walk us through that journey? Even when I was doing this 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh SIP, I didn't know कि one day this SIP will have so much power in the next 10-15 years. One thing I've realized कि जितना ज़्यादा आप डालोगे मार्केट में, उतना लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट्स आपको आएगा. The biggest question which you should be asking yourself is why I need so much wealth. How कैसा बनेगा, क्या रिटर्न्स आएंगे इज़ वेरी वेरी सेकेंडरी. सबसे पहला मंत्र स्टार्ट रेडी. जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ईजी है बनना. एक सर्टेन कॉर्पस आप रेगुलरली डालते रहो और जितना लंबा कंपाउंडिंग आप रखोगे ना, उतना आपका ईजी है वो कॉर्पस बनाना. Hi everyone, welcome to Dhan's podcast. Today we are hosting someone very interesting, someone who has been in the mutual fund industry for the last 20 years. I'm very excited to learn about all things money from him. So welcome to the Dhan's episode, Gajendra sir. And I'll deep dive right into your portfolio because we've all been talking about it and I watched the video as well. You started your mutual fund journey from just investing 5,000 rupees to now investing 30 lakhs per month. Could you please walk us through that journey? Thank you Shraddha for having me here. I think Dhan is a very interesting name of the firm. It's all about money, as you said. So when I started this journey, Shraddha, 2010, though I was in this industry for 6 years, 2004 से लेके 2010 तक, 6 years I even didn't know the value of investing, the power of investing. 2010, it just stuck to me कि if I am now starting my company and telling people to invest their hard-earned money into mutual funds, I have to first believe in this and put in my money to see. That's how I started 2 SIPs, 5,000 ka 10,000 on that day in 2010. And that day I was not sure कि fast forward to 14 years, we'll be sitting here and talking about what SIPs I am now doing. And so of course today this journey has been pretty interesting. I kept on increasing this SIP as and when my income kept increasing. And today I'm happy to share on this platform, it's 30 lakhs, 30,000 per month, that SIP figure which I'm doing, me and my brother. But more interestingly is, कि ये सारी कहानी समझ में आई last 5-7 years में, the power of this. Even when I was doing this 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh SIP, I didn't know कि one day this SIP will have so much power in the next 10-15 years. Today, if you tell me, so just 6 months back, so every April, Shraddha, we increase our SIP amount. So last March tak our SIP figure was 22 lakhs per month, right? And of course, we are into wealth management, so wealth management business has been doing very good. Because our incomes were going up, we said let's pump it up, So now every year the SIP figures that you're doing will keep on going up courtesy markets. So one thing I've realized कि जितना ज़्यादा आप डालोगे मार्केट में, उतना लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट्स आपको आएगा. And interestingly, the first question you started this podcast, so my brother suggested me, he just typed Gajendra Kothari on Google. And the things Google was prompting was Gajendra Kothari SIP, Gajendra Kothari salary, Gajendra Kothari portfolio, Gajendra Kothari net worth. So happy to see that Google is catching these trends, and I'm sure all the viewers are asking these kind of questions or looking for it. So happy to see this thing. Interesting. So let's understand this. This is a sizable amount that you're investing every month, right? So what's your view on continuing investing in mutual funds versus also investing in startups? Like, how do you look at that? Because 30 lakhs is a big amount and some of the angel investments people do are in these range. No, very good question. I think most people क्या होता है, when your SIP amount crosses a threshold or a mutual fund portfolio crosses a threshold, people start diversifying into different stuff, PMS, unlisted equities, startups, angel investing. See, the only thing I have realized is that I have to create wealth. From where it is created, it doesn't matter to me. And somehow I've been into this mutual fund industry for 20 years. I've seen in and out of this industry. And this is one industry, Shraddha, which has a good track record for 30 years, right? So my full conviction was on SIPs. And when it comes to finance, I always believe in the power of simplicity. To me, Shraddha, mutual fund is the most simple vehicle.
and it is a vehicle for common person. आप भी शुरू कर सकते हो, मैं भी, everybody can do it. तो and I seen the power of this simplicity कि in the long term if this vehicle can create me 15-18% compounding, maybe startups can do more, right? But there are limitations with startups. So I don't understand startup world, which means I have to give my money into a startup fund and they would invest in 10, 20, 25 startups. The startups history is very new in India right now as far as the funds are concerned. You know, we have not seen a cycle ki in 10 years they've created huge amount of wealth, right? So and I am not comfortable in investing in my money in any place where there is a lock-in. So today this portfolio, whatever I have in mutual fund, this thing, if I press withdrawal button, in 2 days time my entire money will come back. In startups there is a 8-10 year lock-in, right? And there are performance fees, there are high costs, high taxation. So somehow, you know, I've realized कि अगर सब कुछ करने के बाद वहाँ पे 20-22% return if you have made, and suppose you have made 15-17% return, this 17% return is far better to me than a 20-21% return with a lock-in for 10 years where there is no surety कि ये return आएगा. So I've always kept it simple. I'm not saying कि this is the right strategy. This is what I believed in and I found comfort. But there are a lot of clients of us, वो एक level के बाद, you know, they feel कि यार startups में करने से एक अलग kick आता है, they enjoy it and they can talk to their friends about it. But I have always kept things simple. So ये बहुत अच्छी चीज़ कही आपने कि you know what you want, what is your comfort zone. I feel a lot of times जब हम start कर रहे हैं investing, या we've been investing for quite some time, we don't know what our goal is towards investing, right? I feel there are a lot of, obviously mutual fund पे बहुत content available है, but it's all very generalized कि आप 10% asset allocation यहाँ पे कर दो, 20% यहाँ पे. तो एक ना जर्नी बनाते हैं हम कि let's say there's a 20-year-old investor, 35-year-old investor and 50-year-old investor. What should be their framework for approaching mutual fund investing? Fantastic. So these three are very different personas and profiles. जो एक 20 साल का है उसको मैं simple suggestion करूँगा if he has got into job or something. I'm assuming he's studying right now, 20-year-old person. So तो अगर from pocket money if he can start saving and even putting 500 rupees per month, see he's getting into that discipline or investing mode, and he will make mistakes, he will learn, but at least he knows the power of money. Otherwise 20-year-old kids generally these days when we see they think कि dad के पास बहुत पैसा, parents के पास बहुत पैसा, and they don't value the money part. So at least when they're starting, when they're investing their own money, there's their pocket money, they will then start tracking it and they will see कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है and stuff like that. But the 20-year-old, the moment that person starts working and come into the corporate world, see, unfortunately this subject is never taught in our schools. These discussions don't happen at the dinner table, in the family discussions. And these things are not taught in colleges or not even at the workplace. When you just arrive from a business school campus to a workplace and you got your first check of 30,000, 40,000, आपको पता ही नहीं है क्या करना है. Suddenly you have got 40,000 and you think, wow, I have a lot of money, right? And you start splurging because this, for the first time, this is your money. You don't have to take permission from your parents and you can splurge it all. And वो एक instinct रहता है कि खर्चा करें. So I'm not against that कि you should not spend, you should celebrate and you should spend, but maybe 10% of that, why not just start saving for your future, right? आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. So for a 25-year-old person who has just got a job, who doesn't know what to do, I would say 10%, put it aside, put this money for long-term goal, okay? Maybe 10-15 years. और ये, so if you have a 30,000 salary, 10% of 30,000 is 3,000. Promise yourself that this 3,000 rupees I'm never going to touch. And I'll tell you the reason why. You may save a lot more money for different goals which you can pull out in 6 months, 12 months, 2 years, 3 years. But this 10% or 5% money, you have to promise yourself that I'm not going to touch this for my lifetime. The reason why I'm telling you this, कि जिस दिन आप ये promise कर लेते हो अपने साथ, तो 5-10 साल बाद जब आप उसका value देखोगे, उसकी compounding देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि मतलब ये पावर कितना बड़ा है. दैट विल गिव यू मोटिवेशन फॉर योर अदर गोल्स ऑल्सो. बट अगर आपने सारा पैसा डाल लिया और सब पैसा निकाल लिया, यू हैव ऑलवेज ब्रोकन द जर्नी, आपने कभी वो जर्नी कंप्लीट नहीं की, तो यू विल नेवर बी कन्विंस कि मनी कैन बी क्रिएटेड, सो मच मनी कैन बी क्रिएटेड ओवर लॉन्ग टर्म. द सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट, श्रद्धा, इज व्हेन यू गेट इनटू जॉब, even before investing, the first thing you should be doing is make sure you are covered yourself, insurance cover, because
यू आर नाउ बिकम अ ब्रेड विनर इन द फैमिली, आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स हैं, मेक श्योर यू हैव एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज कल को कुछ हो गया, सी इन्वेस्टिंग में क्या है, आपने 6 महीना डिले किया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट आपको जून में शुरू करना था, आपने दिसंबर में किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, बट आपने अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया एंड बिकॉज यू आर यंग द प्रीमियम्स आर मच चीपर, राइट, तो आप वो ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, उसके बाद आप अपनी फर्स्ट SIP स्टार्ट करो. आई वुड ऑल्सो एनकरेज देम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि खाली म्यूचुअल फंड में डालो, बिकॉज वो एक ऐसी एज होती है यू वांट टू ट्राई आउट डिफरेंट स्टफ. आई वुड ऑल्सो अर्ज यू माइट ट्राई क्रिप्टोज ऑल्सो. ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है. पुट स्मॉल अमाउंट, बिकॉज अनलेस यू पुट इन दैट मनी यू विल नॉट लर्न इट. थियोरेटिकल पेपर ट्रेडिंग करके नहीं सीखते हैं, बट आपने अगर 5,000 रुपये भी डाले हैं ना, तब आप उस पर अटेंशन दोगे, यू विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट. यू माइट मेक मिस्टेक्स बट यू विल लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम दैट. एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना यू नो कि लाइफ में, अर्ली लाइफ में आप जो भी मिस्टेक्स करते हो ना, द मिस्टेक्स आर वेरी इनसिग्निफिकेंट. द ट्यूशन फीस दैट यू पे फॉर दोज मिस्टेक्स आर वेरी स्मॉल, मे बी 5, 10, 15, 20,000. बट अगर आपने उस वक्त मिस्टेक नहीं की और लाइफ के बाद के स्टेज में मिस्टेक की, द कॉस्ट विल बी वेरी बिग. तो आई से ट्राई स्टॉक ट्रेडिंग इफ़ यू वांट, इफ यू लाइक इट, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, क्रिप्टोज और वॉट एवर यू फील, ट्राई योर हैंड्स, बट दैट शुड बी अ फन मनी. ये जो आप SIP कर रहे हैं ना, दैट्स योर लॉन्ग टर्म मनी, और खासकर जो 10% मैंने कहा है. एंड इवन व्हेन यू आर 25, 27 हैव गोल्स. सी एट 25 आपके गोल्स क्या रहते हैं? योर गोल्स विल बी टू बाय ए कार, राइट? I would certainly not recommend to buy a house at 25 or 30. You should not even plan for it. Because at 25 you are in a job, you are in a different city altogether. I always say first 15 years of your work life, you should be living in a rental place and pretty much closer to your office in whichever city you are. Your home and work should be maybe 5-10 minutes away. Because then you save time on commuting. You can either spend time in office or at home learning, reading about yourself. And after 15 years, so even if you want to buy a house, Shraddha, build a corpus for that. 15 साल आप उसके लिए SIP करो, 15 साल बाद घर खरीदो, तब आप में मैच्योरिटी आ जाएगी, तब यू नो विच सिटी यू हैव सेटल्ड इन. बिकॉज इन द फर्स्ट 15 years यू माइट बी मूविंग प्लेसेस. आज बैंगलोर में, कल दिल्ली, थर्ड यू नो यू मे बी इन US और एनी अदर प्लेस. यू डोंट नो वेयर योर जॉब टेक्स यू. आफ्टर 40-45 यू नो कि नो दिस इज अ प्लेस वेयर आई वॉन्ट टू यू नो मेक माई होम एंड स्टफ. एंड बाय दैट टाइम योर कंपाउंडिंग हैज बिल्ट इन, यू हैव अ कॉर्पस, तो आप पे प्रेशर नहीं है. सो हाउस आई वुड नॉट रिकमेंड टू बाय अर्ली इन. दिस इज अ मिस्टेक मोस्ट 25-year-old डू. उनके पेरेंट्स का प्रेशर होता है, शादी होने वाली होती है, तो पेरेंट्स बोलते हैं अगर तुम्हारा घर नहीं होगा तो लड़की कहाँ से मिलेगी, यू नो ऑल दिस थिंग्स. आई एग्री, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इतना बड़ा ऑब्लिगेशन अगर आप अर्ली इन लाइफ ले लेते हो ना, देन यू स्टार्ट लिविंग एन EMI लाइफ. आपके हमेशा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि हर महीने ये EMI देना है. एंड उससे क्या होता है ना कि यू डोंट बिकम इंडिपेंडेंट. you know you don't want to change jobs because कहीं नौकरी चली गई, नहीं मिली तो EMI तो जाएगा. So I don't want you to have these pressures in your life. So rent पे रहो. Yes, you want to have a good car, buy it. You want to travel, go travel because that's the age to travel. आप पैसे को यूज़ भी करो, फन करो, पार्टीज़ करो. All these things is acceptable. But 10 या 20% keep aside. More so, Shraddha, if you're staying with your parents, तो आपके तो कुछ खर्चे ही नहीं है, ना घर का खर्चा है, ना खाने पीने का खर्चा है, तो आपकी तो सेविंग बहुत है. Then if possible, try and save bit more. राइट, मे बी 30% इफ़ यू कैन सेव, बाकी 70% खर्चा करो आप, राइट. सो दिस शुड बी स्ट्रैटेजी फॉर 25-year-old पर्सन. बट इवन देयर यू शुड हैव गोल. अगर आपको iPhone खरीदना है 1 साल में, तो उसका एक गोल बनाओ. मे बी 10,000 की SIP iPhone के लिए, अगले साल 1 लाख रुपये का iPhone खरीदूंगा. 5 साल बाद मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, 3 साल बाद या 2 साल बाद मुझे बैकपैक ट्रिप जाना है. तो वो सबके गोल्स बनाओ और उसकी एक SIP चालू कर दो, और जिस दिन वो गोल की रकम पूरी हो जाए आप ब्रेक कर दो और वो खर्चा कर लो, राइट. सो ये गोल्स हो गए 25-year-old के लिए. नाउ लेट्स मूव टू 35-year-old पर्सन. आई एम अज्यूमिंग नाउ ही इज़ मैरिड और ही और शी इज़ मैरिड, एंड ऑल्सो अज्यूमिंग हस्बैंड वाइफ both are working and they have a kid maybe, right, and both of them are now earning substantial amount of money, right. So I would suggest them, they have to now become serious in their life, right. they जो फन टाइम था वो अब उतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. they have to be serious. Both of them sit together. They should sit together as a unit and discuss their plans. कि हमारे फैमिली प्लान्स क्या हैं, राइट. राइट डाउन ऑन पेपर एंड देन से कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है. नाउ फ्रॉम मेरी प्रायोरिटी इट बिकम्स हमारी प्रायोरिटी, कि हमें घर खरीदना है या बच्चों की पढ़ाई. एंड द मोमेंट यू हैव अ किड, एवरीथिंग फोकसेस, यू नो एवरीथिंग गोज टू फोकस ऑन द किड. तो आप, और आजकल उनके
पढ़ाई के खर्चे बहुत हो गए हैं, तो स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम डे वन. जब व्हेन माई डॉटर वॉज बॉर्न, आई वॉज 30 एंड माई डॉटर वॉज बॉर्न, तो मैंने उस दिन से 10,000 की SIP उसके लिए चालू कर दी थी, राइट. और जैसे जैसे मेरे पास कुछ रक्षाबंधन गिफ्ट आए, मैंने उसमें टॉपअप करते गया. अभी आज वो 14 साल की है और वो 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया है. तो अगर मैं उस दिन स्टार्ट नहीं करता ना, तो ये शायद कभी नॉलेज में नहीं आता. तो बच्चों की पढ़ाई, एंड देन स्टार्ट एट 35 स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट ऑल्सो. ओके, दो मेनी पीपल थिंक यार अभी रिटायरमेंट क्यों, अभी तो आई एम एंजॉइंग माई दिस थिंग. बट नाउ डेज सी Shraddha, gone are the days when our parents used to work till 60, 65, they would never retire. But our generation today, we would like to retire at 50, 55, fire, financial independence, retire early. यार 50 से ऊपर काम नहीं करना है और इतना स्ट्रेस होता है, तो वी may not be able to work also. तो देन स्टार्ट सेविंग अ पोर्शन ऑफ योर मनी फॉर रिटायरमेंट. जो मैंने लॉन्ग टर्म बताया था ना आपको, वो रिटायरमेंट होना चाहिए. बाकी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट फॉर योर वेकेशन, हॉलीडेज, गोल्स वगैरह. सो 35 में, एंड मेक श्योर एट 35, 35 इज़ द एज व्हेन you both can contribute significant amount of money. Start building that corpus. Okay, जब आप 50 तक पहुंच जाते हो, and now I am assuming कि you bought a house, आपने खरीद लिया है, और अब आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के गोल्स आ गए हैं, और आपने चूंकि 35 में वो गोल्स शुरू किए थे, तो वो पैसों से हो जाएगा. एट 50 योर मेन गोल शुड बी देन कि इन नेक्स्ट 5-10 years do I have enough corpus for me to last for next 30 years. Okay, that is why retirement becomes the mainstay of this thing. Hopefully you shouldn't have loan at 50, 55 on your head. आपने सारे loans complete कर लिए हैं या आखिरी स्टेज पे हैं. And at 50 is not the stage to experiment. कि क्रिप्टो में डाल दिया या वहाँ डाल दिया, वहाँ पे आप सीरियस मनी है. You can't go on trading, you can't afford to make mistakes because the mistakes might be very costly. So you have to by then have known कि what is the thing that gives you comfort. And if with age your risk appetite starts going down, so be it, it's okay. आपको लगता है अब मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, I want stability in my capital, you can invest in fixed income instruments जहाँ 7-8% जो मिलते हैं. तो your strategy can differ, but at 25 if you have a long term view, you can go aggressive. Even if you lose money in mutual funds, in stocks, it's okay, you will have time to come back. But at 50-55 it will become very difficult. तो और ये सब जिस दिन अपने को पता चल जाता है, we should be very honest with ourselves and not compare with different people कि अरे वो 25% रिटर्न बना रहा है, स्टॉक मार्केट जा रहा है, तो मैं भी सारा निकाल दूँ. You have to be very honest with yourself and don't be in that rat race. See, one thing which I always find people, and with these podcasts हम सुनते हैं, सबको एक रेस लगी है, 100 करोड़ 50 करोड़ बनाना है. You don't have to be in that race. You decide what is आपके लिए शायद 5 करोड़ बहुत है, 3 करोड़ बहुत है. You can live a very comfortable life. Decide that milestone for you and start working towards that milestone. और जिस दिन वो milestone खत्म हो जाता है ना, don't move your goals. आप गोल पोस्ट चेंज मत करो, वरना आप लाइफ में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, राइट. सो ये सिंपल चीज़ों को आप ध्यान में रखते हो तो आई थिंक यू आर सॉर्टेड. You mentioned very correctly that don't keep changing the goalposts. And when someone is starting their journey, right, I feel नहीं पता होता है उन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में. एंड काफ़ी मैंने देखा है जो 5-10 साल से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे डोंट नो अ लॉट अबाउट व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग, हाउ एक्चुअली उनका पोर्टफोलियो का एलोकेशन क्या होना चाहिए. जब आप स्टार्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, 2-5% रिटर्न्स वोंट मैटर टू यू बिकॉज आपका कॉर्पस बहुत छोटा है. बट जैसे ही आपका कॉर्पस बड़ा होता है, दैट 2-5% रिटर्न इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, राइट. तो कैन यू हेल्प आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट विद एन एग्जाम्पल. सो सी, I'm sure all our viewers must be knowing the power of compounding. Compound interest का फॉर्मूला भी सबको मालूम है. P into 1 plus R by 100. 3 वेरिएबल्स होते हैं आपके कंपाउंडिंग में. प्रिंसिपल आप कितना डालते हो, रिटर्न्स आप कितना कमाते हो, और कितने टाइम के लिए डालते हो. उसमें से श्रद्धा 2 चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है. P मतलब आप कितना डाल सकते हो, और T टाइम कितने लंबे टाइम के लिए डाल सकते हो. रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है, रिटर्न्स मार्केट देता है, राइट. एंड मार्केट्स डोंट गिव यू द रिटर्न्स दैट यू वांट, मार्केट गिव्स यू द रिटर्न्स दैट यू डिजर्व, right? So we may both want 20% returns, but you have been a great investor and you deserve 20, and I've been a very fast investor in and out. I don't deserve 20. I might end up getting 10 only, right? So आपने जो बात कही P, तो I would suggest P जितना ज़्यादा आप डाल सकते हो comfortably, आप वो डालते रहो. See,
व्हेन आई से जितना आप कर सकते हो, इट डजंट मीन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ योर करंट लाइफ. आई वांट यू टू लिव योर प्रेजेंट लाइफ ऑल्सो. ऐसा नहीं कि सारा फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, राइट? जैसे मैंने 25 साल वाले के लिए बताया कि यार आप 10-15%, 20% भी कर पा रहे हो ना, बहुत है. 80% आप खर्चा करो. यू हैव टू मेक अ बैलेंस. बट धीरे धीरे जब आप वो पी बढ़ा रहे हो और टी बढ़ा रहे हो, तो रिटर्न्स भी अगर बढ़ सकता है, तो ये जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, दैट विल गिव यू द हाईएस्ट कंपाउंडिंग. आपने बहुत सारा पैसा डाल दिया, बहुत टाइम के लिए डाल दिया, लेकिन 7% एफडी में ही सारा पैसा डाल दिया, तो आपकी कंपाउंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी 15% या 14%, 12% में कंपाउंडिंग होगी. तो शुरू में तो नहीं पता चलता है, बट धीरे धीरे आपको वो दिखने लग जाता है कि 1% या 2% का भी फ़र्क बहुत बड़ा होता है. आई विल गिव एन एग्जांपल. सपोज वी आर ट्रैवलिंग इन अ शिप, जहाज में जा रहे हैं हम, और कंपास आपको दिखा रहा है ये डिग्री पे जाना है, राइट? 1 डिग्री का भी अगर हेर फेर हो गया ना, और आप 20 दिन ट्रैवल कर गए, यू विल लैंड इन 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. Just 1 degree of error, right? But because you travel the distance, you will be in 2 different places, countries altogether. The same thing works in investing. 1% higher and there on this size for 20 years can make a significant difference in your portfolio. Now, the idea is how do we earn that extra high? Which for that you have to become a good investor. You have to deserve that high returns, right? उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए. ये तो आप खुद सीख कर भी कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि खुद आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ राइट एडवाइज़र हु विल गाइड यू. हर चीज़ के लिए आपको गाइडेंस मिलती है. इफ़ यू टेक हेल्प ऑफ अ राइट पर्सन, आई एम श्योर ही और शी विल मेक श्योर दैट you are able to get what you wanted, right? So then I think that issue can be solved. इंटरेस्टिंग. सो ऑन धन हमारा यूज़र बेस बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, एंड यूजुअली जब हम ट्रेडर्स से बात करते हैं, तो वो जो भी रिटर्न्स बनाते हैं मार्केट से, दे प्रेफर कि वो अपना ट्रेडिंग कैपिटल इंक्रीज करे. बट इन द लॉन्ग टर्म, what would you suggest, like how should traders look at investing in mutual funds? It's a very difficult question. See, I've been into investing for last 20 years. मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ. मैंने बहुत कम लोगों को देखा है ट्रेडिंग से वेल्थ बनाते हुए. मैंने बहुत सारे लोगों से सुना ट्रेडिंग से रिटर्न्स कमाते हुए, बट ट्रेडिंग से साइजेबल वेल्थ 50, 100, 500 करोड़. देखो, आज हम स्टॉक मार्केट जब बात करते हैं तो हम लोग राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, ऐसे 10-12 नाम्स हैं जो हम हमेशा कॉमन है बोलते हैं. बट मुझे याद नहीं है कि इंडिया में कोई एक आदमी है जो ट्रेडिंग से इतना फेमस हुआ कि खाली ट्रेडिंग करके उसने 500, 1000, 5000 करोड़ बनाए हैं, राइट? आई डोंट नो एनी पर्सन कि ही इज़ सो फेमस कि ओनली बाय ट्रेडिंग ही हैज़ मेड मनी. सो आई हैव रियलाइज कि इट्स वेरी डिफिकल्ट. लाखों में एक कोई आदमी हो सकता है जिन्होंने थोड़ा अच्छा किया है. सो आई एम अ बिग बिलीवर कि इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनाना ईजी है, ट्रेडिंग से बहुत डिफिकल्ट है. और ट्रेडिंग में क्या होता है श्रद्धा, आपने 4-5 साल अच्छे किए और 1 साल आपका ख़राब गया ना, यू विल वाइप आउट ऑल योर गेन्स. ड्रॉ डाउन सब खत्म कर देता है, बिकॉज यू कीप बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट. और एक दिन वो सब ओवर कॉन्फिडेंस, देयर वाज अ फंड कॉल्ड LTCM in US, and this hedge fund was founded by Nobel laureates, right? और उन्होंने वो ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल बनाया था, तो और उनको नोबेल प्राइज़ उसके लिए मिला था. तो सोचो, नोबेल प्राइज़ विनर्स ने एक फ़ंड लॉन्च किया क्वांट ट्रेडिंग पे, और वो ट्रेडिंग करते थे. तो पहला 4-5 साल उन्होंने बहुत पैसा बनाया, एंड दे वर इनविंसिबल. उन्होंने कहा कि हमारा मॉडल कभी रॉन्ग जा ही नहीं सकता है. और 6ठे साल वो रशियन क्राइसिस हुई, उसमें उनका सारा पैसा ख़त्म हो गया. दे बिकेम बैंकरप्ट. US गवर्नमेंट हैड टू बेल देम आउट, राइट? तो अगर नोबेल लॉरिएट्स अमेरिका में नहीं बना सके, सक्सेसफुल नहीं हो सके, तो वी आर नॉर्मल इन्वेस्टर्स यार, नॉर्मल ट्रेडर्स. हमें नहीं लगता है कि देयर इज़ अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी जिससे शॉर्ट लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारा बना सकते हो. अगर आज वो स्ट्रैटेजी होती तो सबको, आपको भी पता होता, मेरे को भी पता होता, हम सब बना लिए होते, राइट? तो इट्स नॉट दैट ईजी. हैविंग सेड दैट, देयर आर फ्यू पीपल हु विल क्रिएट डिसेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ, बट इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. इनफैक्ट सेबी की रिपोर्ट है जहाँ हमने देखा है 90% पीपल लूज मनी इन ट्रेडिंग. जीरोधा की रिपोर्ट है 95% पीपल आर नॉट एबल टू बीट FDs. तो इन्वेस्टिंग इज़ वन थिंग जहाँ सब सक्सेसफुल हो सकते हैं. एक कॉमन 500 रुपये कमाने वाला सब्जी वाला भी इन्वेस्ट करके अपने हिसाब से वेल्थ बना सकता है, एंड somebody can put 5 crores every year and can create decent wealth. So this is a subject which is not a rocket science. इसके सीक्रेट्स अभी जो हम शेयर करें, अगर आप भी फॉलो करते हो, मैं भी करता हूँ, वी विल ऑल क्रिएट आवर ओन वेल्थ. सो आई वुड से कि अगर आपको ट्रेडिंग अच्छी लगती है फुल टाइम, आप करो उसको, राइट? बट
मे बी 30% आप उसमें डालो. कोर पोर्टफोलियो जो है लॉन्ग टर्म मनी 50-60%, डोंट रिस्क विद दैट मनी. डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं लेट मी पुट एवरीथिंग एंड लेट मी कीप डबलिंग ट्रिपलिंग. वन फॉल राइट विल वाइप यू. जब सी दुनिया के जो हम महाभारत देखते हैं राइट, एंड ट्रेडिंग इज सम फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग इन द सेंस स्पेकुलेशन है राइट. यू आर स्पेकुलेटिंग ऑन द प्राइसेस या यू आर डूइंग चार्ट्स वगैरह काइंड ऑफ थिंग. वन बिग रॉन्ग मूव कैन वाइप आउट. आई हैव सीन दैट. And unless you're doing with stop loss and you're doing with very discipline, right? If you're doing with all discipline, you can still make money, but 90% people are not follow that discipline, right? और एक black swan event कुछ आएगा ना, आपकी सारी strategies, can go out of the window. You have to be very careful. It's a very thin, this thing ice. So I would say 70% of the money keep aside for your serious money, long-term goals. 30% कीप प्लेइंग. उससे अगर आप 100 करोड़ भी बना लिए, 50 करोड़ भी बना लिए, और अगर वो ज़ीरो भी हो जाता है ना, तो यू डोंट हैव रिग्रेट्स. सी यू शुड नेवर प्ले अ गेम इन लाइफ वेयर योर डाउन साइड इज़ अनलिमिटेड. मतलब कि आप ख़त्म ही हो जाओ. जिस दिन आप वो गेम खेलोगे ना किसी दिन वो एक दिन आएगा लाइफ में कि वो डाउन साइड आएगा. वो 1000 में सी आप अगर स्ट्रीट कार रेसर हो, आप 100 की स्पीड में चलाते हो राइट, और आप 10 साल से चला रहे हो, एवरी टाइम यू रीच फर्स्ट तो यू से वाओ, मतलब मैंने कितना टाइम बचाया और मैं कितना फास्ट हुआ, आई एम ए स्किल्ड ड्राइवर. बट वन एक्सीडेंट कैन किल यू एंड देयर इज नो लुकिंग बैक. यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस. सो वन फ्रीक एक्सीडेंट इन ट्रेडिंग, वन ब्लैक स्वॉन इवेंट कैन वाइप आउट योर एंटायर कैपिटल इफ यू हैव नॉट स्टॉप लॉस वगैरह नहीं रखा है. दैट इज़ माई बिगेस्ट वरी. सो दैट इज़ वाई सेड 30% अगर आपका गया, ज़ीरो हो गया, हाथ जोड़ो, बोलो कि अब आगे से नहीं करना है, लेट मी फोकस ऑन दिस थिंग. एंड एज लॉन्ग एज यू मेकिंग मनी, कीप मेकिंग मनी विद दैट 30%. तो इफ़ एंड एक्सेप्ट राकेश झुंझुनवाला हु वाज अ वेरी स्किल्ड ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, वो लाखों करोड़ों में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हैं. मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो सक्सेसफुली दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हैं. बिकॉज सी आपका माइंड एक सर्टेन तरीके से काम करता है. इफ़ यू आर ट्रेडर, यू आर ऑलवेज विद ट्रेडर मेंटालिटी. यू कांट सडनली स्विच और इन्वेस्टर बन जाओगे. इसके लिए आपको सुपर पावर चाहिए. I think it's not rocket science, but psychology, and it's difficult. It's human tendency to go against, and we have so many biases, right? So we spoke about investing, right? So let's talk about IPOs, NFOs. There is a IPO craze going on. We recently saw, right, a car dealership wanting to raise 10-15 crores is getting an interest, I mean 40-100 crores. So that says something, right? And in your career of 20 years, I'm sure आपने बहुत NFOs भी देखे होंगे, right? So how do you personally evaluate NFOs, and how should a new investor look at NFOs, and क्या NFOs में invest करना भी चाहिए? So Shraddha, I'm going to make a big bold statement. I'm not a big believer of NFOs. In fact, NFOs in most cases are just AUM gathering exercise की AUM collect करना है. They're not very meaningful. ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो वो ला रहे हैं तो ठीक है. बट मेनी टाइम्स यू सीन आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉन्चिंग यू आर लॉन्चिंग, इफ़ यू डोंट बिलीव इन दैट, इवन इफ यू डोंट बिलीव इन दैट राइट. सो आई जनरली बिलीव कि ज़्यादा जब NFOs आते हैं ना, विच मीन्स वी आर इन ए यूफोरिक साइकिल. ज़्यादा कंपनीज़ के IPOs आ रहे हैं, वी आर इन यूफोर, दैट इज़ अ टाइम टू गो स्लो. सी व्हेन द होल मार्केट इज इन ए यूफोरिया, गुड इन्वेस्टर विल ऑलवेज सिट बैक एंड लेट द अपॉर्चुनिटी पास राइट. Because if you have to win in the investing game, you have to have a contrarian philosophy. Going with the crowd in investing, going with the crowd doesn't work, right? You have to go against the crowd. So because crowd always follows the greed and fear cycle. जब fear होता है तो सब बेच के निकलना चाहते हैं, जब greed होता है तो सब खरीदना चाहते हैं. तो somebody like me, I'll be very skeptical about NFOs when they are coming at these times, जब इतना यूफोरिया है. सब NFO में आप देखो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ यूँ कलेक्ट हो रहे हैं. ऑल दिस रिटेल पीपल आर बाइंग राइट, एंड दे आर बाइंग एट द हाइस्ट वैल्यूएशन. तो पैसा उसी वक्त आता है, बट दैट मे नॉट बी द राइट स्ट्रैटेजी. आई एम अ गाय हु विल लुक व्हेन जब कोई कंपनी का IPO या NFO आ रहा है, जब मार्केट एकदम डाउन है, कोई लेने वाला नहीं है, एंड इफ आई थिंक दैट्स अ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, दैट इज when I might want to go, if there. But generally I invest my money in existing funds जिसका long term track record रहा है, right? और लोगों को लगता है अरे 10 रुपये का NFO है, सस्ता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. म्यूचुअल फंड में NAV doesn't matter. चाहे 400 रुपये का NAV है, चाहे 10 रुपये का, चाहे 4,000 का, it doesn't matter. आज आपने पैसा डालना शुरू किया, आज से वो रिटर्न्स वहाँ से शुरू होगा.
सो मैनी पीपल भाई अरे ये एग्जिस्टिंग फंड नहीं खरीदना बिकॉज इसकी NAV बहुत हाई है. ये सब चीज़ें म्यूचुअल फंड में कोई मैटर नहीं करती है, राइट. सो यू शुड स्टिक टू सिंप्लिसिटी, सिंपल फंड्स, डाइवर्सिफाइड फंड्स. 2 3 4 फंड्स के ऊपर आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, राइट. आप सोचो हर NFO आया आपने लेते गए तो आपने तो 15 का एक अमेजोन स्टोर खोल लिया उसका आपने. ये वर्क नहीं करता है. इन म्यूचुअल फंड्स द मोर इज़ नॉट बेटर, इट इज़ एक्चुअली वर्स. So, when someone is buying their mutual fund, there are so many things to look at, and a new investor is bound to get confused. मैं ratings देखूँ, return देखूँ, like historical performance, and सब बोलते हैं, don't go on the fund's past performance, right? So, how should one evaluate a mutual fund? एकदम basic if we, want to look at it. बहुत सिंपल है, राइट. जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है मैं उसको बोलूँगा इंडेक्स फंड से शुरू करो. उससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है. निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स, राइट. आप उसको बाई कर लो, 90% रिटर्न आपका वहाँ से आ जाएगा और 95% रिटर्न आपका वहाँ से आ गया. अगर मार्केट 13% रिटर्न दे रहा तो आपको भी 13 आएगा, मार्केट 10 दे रहा तो आपको भी 10 आएगा. ना आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ना टाइम वेस्ट करना है, और आप उसमें करोड़ों रुपए भी डाल सकते हो. आपकी सारी संपत्ति भी चाहे तो आप उसमें डाल सकते हो. यू डोंट हैव टू वरी, राइट. सबसे ईजीएस्ट तरीका वो है. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन श्रद्धा की मार्केट 13 दे रहा और आप चाहते हो कि नहीं मुझे मार्केट को बीट करके 2% और एक्स्ट्रा कमाना है. अभी हमने बात की कि 1% भी कितना डिफरेंस ला सकता है. तो अब वो 1% का जो अल्फ़ा है उसके लिए हम इतना टाइम उसमें लगा देते हैं और उस चक्कर में हम वो 13% भी मिस कर जाते हैं. तो हम लोग 13 मार्केट दे रहा था, नाउ यू आर गनिंग फॉर 15%. इन द होप, इन द परस्यूट ऑफ गेटिंग 15%, वी एंड अप गेटिंग नॉट इवन 10%. एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ वर्ल्ड डेटा इज शोइंग कि अगर मार्केट्स ने 15% रिटर्न दिए हैं, क्लाइंट्स ने इंडेक्स फंड में भी 10% ही रिटर्न बनाए हैं. Because they kept moving in and out of the fund. They came in at the wrong time and they exited again at the wrong time. So they never made the market returns itself. So 95% लोगों के लिए मैं बोलूँगा अगर आप DIY कर रहे हो without any guidance, without any help, just go and put your money in index funds. 50,000 की SIP कर रहे हो या 5,000 की या 5 लाख की, सारा पैसा आप उसमें डाल सकते हो. You can sleep peacefully and you're going to create huge amount of wealth. Right? Because of discipline and because you didn't time it. आप करते गए. बट अगर आपको अल्फ़ा कमाना है, दैट इज़ व्हेन यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू डू रिसर्च और यू हैव टू टेक सम हेल्प. ना व्हाट आपने कहा कि कैसे आइडेंटिफाई करें. सो देन यू हैव टू सी कि अभी मार्केट्स में कौन सा सेक्टर नहीं चला है, या कौन सा स्मॉल कैप नहीं चले या मार्केट कैप नहीं चले हैं. सी मार्केट्स आर ऑलवेज सिक्लिकल. जो आज चला है वो कल नहीं चलेगा, जो नहीं चला वो कल चलेगा. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो 3-4 साल में क्या नहीं चले हैं, राइट. और वो नहीं चले हैं, आप एक कॉन्ट्रेरियन बेट ले रहे हो, आप उसमें डाल रहे हो सकता है आपको पेशेंस रखना पड़े, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल प्ले आउट. व्हेन इट प्लेज आउट इट विल गिव यू मोर देन फेयर शेयर ऑफ रिटर्न्स, राइट. बिकॉज लास्ट 3 साल रिटर्न नहीं बने हैं. बट ये आइडेंटिफाई करना इतना ईजी नहीं होता है. यू हैव टू, यू हैव टू अंडरस्टैंड विच सेक्टर्स हैव नॉट वर्क, विच. सो अभी जैसे लास्ट 4 साल से लार्ज कैप्स इतने नहीं चले हैं, मिड एंड स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा है. सो एज ए कॉन्ट्रेरियन आई वुड लाइक टू पुट मनी इन लार्ज कैप्स बिकॉज ये चले नहीं है. नाउ या तो मार्केट गिरेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ज़्यादा गिरेंगे और लार्ज कैप कम गिरेगा. दैट्स हाउ आई एम प्रोटेक्टेड. ये अब यहाँ से मार्केट चलना है तो आई एम होपिंग कि लार्ज कैप ज़्यादा चलेंगे बिकॉज वो चले ही नहीं है. तो दोनों तरफ से मैं बेटर ऑफ हूँ. सेकेंड इज़ गो विथ, व्हेन यू लुक इन अ फंड, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि ये जो फंड मैनेजर है, डोंट गो विद द इमीडिएट पास्ट परफॉर्मेंस. बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हम क्या देखते हैं, लास्ट 1 ईयर का जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है, राइट. इफ़ यू गो विद दैट यू विल ऑलमोस्ट गोइंग टू लूज मनी, क्योंकि वो फंड ने जब रिटर्न बनाया जब आपने इन्वेस्ट नहीं किया था. आप जा रहे हो, आप होपिंग कि लास्ट ईयर उसने 70% रिटर्न दिया तो इस साल भी 70 आएगा. ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर उसने 100% रिटर्न दिया है, वेरी हाई चांसेस दैट नेक्स्ट 2 years यू वोंट मेक एनी रिटर्न्स, वेरी हाई चांसेस. तो आई ऑलवेज सजेस्ट डोंट चेज परफॉर्मेंस, particularly the recent performance, 1-2 years performance. Go with a fund who has a consistent performance for 10-year period, 15-year period. अगर एक फंड है जिसने 15 साल में 12, 13 या 15% कंसिस्टेंटली दिए हैं ओवर लॉन्ग टर्म, आई थिंक दैट्स अ गुड फंड. एंड देन सी इफ दैट फंड हैज बीटन द मार्केट. तो इंडेक्स फंड इज द फर्स्ट, बट आपको इंडेक्स को बीट करना है तो दैट फंड हैज़ टू बीट द मार्केट ओवर लॉन्ग. अगर उसने 1-2% से बीट किया, दैट इज अ गुड फंड टू स्टार्ट. And most of the time, I would advise 90% of investors should invest in a diversified equity fund rather than going to sector fund or a small cap or very high risk fund. एक अच्छा मल्टी कैप फंड ले लो आप. मल्टी कैप फंड में क्या होता है श्रद्धा, 25 लार्ज मिड एंड स्मॉल में रहना ज़रूरी है. बाकी 25% डिस्क्रेशन है फंड मैनेजर को कि वो किस में डाले. तो इन ए वे यू हैव बॉट द एंटायर मार्केट.
दैट वुड सॉल्व 90% ऑफ योर प्रॉब्लम. और एक या दो मल्टी कैप फंड ले लो, इट्स मोर देन इनफ. यू डोंट नीड टू हैव सेपरेट लार्ज कैप, सेपरेट मिड कैप, सेपरेट स्मॉल कैप. और लोग, मैं देखता हूँ लोग 3 मिड कैप, 3 स्मॉल कैप, 3 लार्ज कैप लेते हैं. यू आर एक्चुअली डुप्लीकेटिंग योर पोर्टफोलियो. इट डजंट वर्क बियॉन्ड अ पॉइंट. एंड देन एंड लुक एट द कॉस्ट ऑल्सो. अगर हाई एक्सपेंस रेशियो है, अगर 25 मिड कैप फंड्स हैं तो एक्सपेंस रेशियो कैन स्टार्ट फ्रॉम 1.5% इन रेगुलर प्लान टू 2.25 ऑल्सो. और डायरेक्ट प्लान में तो 25-30 पैसे से लेके 1.25% तक है. तो खाली एक्सपेंस रेशियो ऑल्सो डजंट मैटर. यू हैव टू सी हु ट्रैक रिकॉर्ड भी क्या है. दोनों का कॉम्बिनेशन आपको अच्छा मिलता है, देन गो विद दैट फंड. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द कॉस्ट दैट यू आर पेइंग इन अ फंड. यू शुड बी अवेयर कि हु इज़ बीन द फंड मैनेजर एंड व्हाट इज हिज ट्रैक रिकॉर्ड. हर म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे आपको उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है, उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है, राइट. वो देख लो. फंड का फिलॉसफी भी लिखा हुआ रहता है कि ये फंड कहाँ पैसा डालेगा, हु इज़ इट सूटेबल फॉर. तो वो देख लो. बस उतना आपने अगर देख लिया, आपको ये नहीं देखना कि उसके पोर्टफोलियो में क्या है. आज मुझे आप पूछो कि उसके पोर्टफोलियो में 50 कंपनीज, आई डोंट नो इंडिविजुअल स्टॉक्स. तो मुझे वो देख के क्या मतलब है. बहुत लोग जाके देखते नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या स्टॉक्स में डाले हैं. भाई अगर आपको इतनी नॉलेज है कि क्या स्टॉक्स में डालें तो आप वो स्टॉक्स में डाल लो खुद ही. बट उतनी नॉलेज नहीं है तो जस्ट लीव इट टू द फंड मैनेजर. दैट इज हिज डोमेन. You just trust him, give him, and any fund that you're investing in, give minimum period of 5 years. 5 साल से पहले गुड बैड अगली कुछ भी हो, डोंट इवन लुक एट इट, राइट. बहुत बार मैंने सुना है 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस होता है ना, लोग स्विच कर जाते हैं कि यार पैसा काम ही नहीं कर रहा है. आपने 2 फंड में डाले, एक ने 10% रिटर्न दिया है और एक ने -5 दिया है, तो आप क्या करोगे, -5 से निकाल के 10 में डाल दोगे. ऐसा नहीं करना. अगर आपने ठीक रिसर्च किया है, आपको मालूम है कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा है, तो गिव इट 5 years, राइट. एंड फाइनली इट इज़ द पेशेंस गेम. जितना पेशेंस रखोगे उतना बन जाएगा आपका. इसका ना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हमने बनाया है धन पे. हाँ. सो ऑन म्यूचुअल फंड्स बेसिकली लाइक वी कैन सी ऑल द होल्डिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड, राइट. तो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर बनाया है, आउट परफॉर्मर्स. तो आप देख सकते हो कि वो म्यूचुअल फंड के जो भी होल्डिंग्स है, राइट, उसमें से आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हैं. तो आफ्टर यू डन योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, अभी आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं इंडिपेंडेंटली इक्विटी इन्वेस्टिंग भी कर सकता हूँ, तो आप वो फीचर यूज कर लो कि देख लो वो फंड के आउट परफॉर्मर्स कौन से हैं. या स्टॉक वाइज. So that's how we are solving for investors, both equity investing and mutual funds. That brings me to 20 years of experience in the markets. You've also led the PMS division at UTI. What has been your experience there, which retail investors can learn from? Right. So see, when I was in the part of mutual fund industry, I have seen कि generally ये industry हम लोग बहुत सारी चीज़ कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, राइट. और हमें लगता है कि हमारा काम है कि इन्वेस्टर कुछ भी डिमांड कर सकता है, हमारे पास वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, राइट, एज ए मैन्युफैक्चरर. बट 90% ऑफ द टाइम, श्रद्धा, एंड आई एम मेकिंग दिस अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, इन्वेस्टर्स डजंट नो व्हाट ही और शी वांट्स. हमें ये लगता है कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, राइट. सी, हम कोई अमेजोन का स्टोर नहीं है कि यार मैं आपको 500 ऑप्शन दे रहा हूँ, राइट. बिकॉज आप घड़ी खरीदने जा रहे हो तो आपको इतनी आइडिया है कि मुझे कौन सी घड़ी खरीदनी है, मेरे प्राइस पॉइंट क्या है, मेरी फीचर्स रिक्वायरमेंट क्या है, आप खरीद सकते हो. और अगर आपने मिस्टेक भी की उसमें, तो आपका कॉस्ट क्या है, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये. नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक नहीं करोगे. बट म्यूचुअल फंड्स में हम जस्ट ये बोल रहे हैं कि नहीं, इन्वेस्टर को पता है कि उनको क्या खरीदना है और हम सारे ऑप्शंस देंगे. एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज 99% इन्वेस्टर्स जानता नहीं है कि उसको क्या खरीदना है, राइट. सो आई ऑलवेज बिलीव, गिव हिम सिंपल प्रोडक्ट्स, गिव हिम, मतलब आपके पास कम फंड्स रहेंगे तो आप फोकस कर पाओगे. आप जितने व्हीकल्स बनाओगे ना, उतना आप कंफ्यूज कर रहे हो, राइट. सो वन थिंग आई हैव लर्नड बाय बीइंग इन दिस थिंग इज द होल वर्ल्ड इज डिजाइंड टू मेक द इंडस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड. जिस फंड हाउस ने सिंप्लिसिटी पे काम कर लिया ना, इन द लॉन्ग टर्म दे आर गोइंग टू इमर्ज विनर्स. बिकॉज यू हैव टू सिट इन द कस्टमर शूज एंड थिंक कि उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए क्या राइट है. अगर वो भूल से भी आपके फंड में आ गया तो उसका गलत एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए. और आप जितने टेक्निकल प्रोडक्ट्स बनाओगे, जितने स्पेसिफिक बनाओगे ना, वो स्पेसिफिक टाइम पे ही काम करेंगे, बाकी टाइम पे वो काम नहीं करेंगे. एंड इन द एंड यू आर क्रिएटिंग अनहैप्पी कस्टमर्स, राइट. सो आई बीन अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ सिंप्लिसिटी इन फाइनेंस, इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ ऑल्सो, बट मोर इन फाइनेंस. जितना सरल हो सके, ऐसा चीज़ होना चाहिए कि इफ़ आई नीड टू कन्विंस माई ग्रैंड मदर ऑल्सो और माई 10-year-old daughter also, I should be able to convince her easily. Yeah, but I'll give you an outsider's perspective on this. कि कई बार हमें लगेगा कि यार इतना आसान है, तो
we can't believe that it's so simple. You know, it's just for a retail investor or someone who's just getting started. We feel like, oh, if someone's complicated, मतलब यार ये चीज़ सही होगी, अगर इतना ही आसान होता तो मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया, ये दिक्कत आ जाती है. तो ये होता है और आज के दिन में और ज़्यादा होता है, राइट. बट यू सी द स्टेटमेंट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो विंची. लियोनार्डो विंची से सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. एप्पल में स्टीव जॉब्स जब बना रहे थे मोबाइल फ़ोन, उससे पहले ब्लैकबेरी हिट था. उसके ब्लैकबेरी में 100 बटन्स थे. तो जब स्टीव जॉब्स ने कहा मुझे एक भी बटन नहीं रखना है, राइट, एवरीबॉडी वाज रिडिक्यूलिंग हिम कि यू नो कस्टमर्स को ये चाहिए. तो स्टीव जॉब्स बोलता कस्टमर नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए, मैं जानता हूँ कस्टमर को क्या चाहिए. एंड दैट्स हाउ ही इंट्रोड्यूस आईफोन टू द वर्ल्ड. एंड टुडे लुक, आईफोन हैज़ बिकम क्रेज, राइट. ही सिंप्लीफाइड द एंटायर स्टफ, राइट. सो ही सेड अगेन कैमरा फंक्शन. ही सेड कि हर स्मार्टफोन का यूज़र इज़ नॉट ए गुड कैमरा पर्सन. उसको फ़ोटो खींचना नहीं आता है, राइट. तो हमें उसके अच्छा फ़ोटो खींचने वाला नहीं बनाना है, हमें कैमरा इतना अच्छा बना देना है कि वो कैसे भी फ़ोटो खींचे वो अच्छी आए. लुक एट हिज थॉट प्रोसेस, राइट. सो व्हाट आई बिलीव इज़ यू नीड टू नो डीप. सो एज एन एडवाइज़र, हम जब फर्स्ट टाइम क्लाइंट से मिलते हैं ना, हम क्लाइंट को बोलते हैं आपको भी नहीं पता आपको क्या चाहिए. वो आपको 5 साल बाद पता चलेगा जब जर्नी में जाओगे. आज आप मेरे पास आ रहे हो कि सर मुझे हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म हूँ, ये सब आज बोल रहे हो. 6 महीना आपका नेगेटिव रिटर्न आने दो, आप यू टर्न कर लोगे. आप बोलोगे अरे नहीं सर मेरे को निकालना है, मुझे एफडी में डालना है, ये मार्केट्स नहीं है. कस्टमर डजंट नो हिमसेल्फ. दैट इज़ वेयर विथ योर एक्सपीरियंस ऑफ 20 years यू हैव टू engage in the right way, you know, prod him and then get the best out of him. बट एक बहुत कॉमन ऐसा सेइंग है कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आप जॉब से नहीं बना सकते. यू कांट गेट रिच ऑन अ सैलरी, यू हैव टू डू अ बिजनेस. आई वांट टू नो योर व्यू ऑन दिस. क्या सैलरी से कोई रिच बन सकता है एंड कोई पर्सनल एग्जांपल है आपके पास? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. सो सैलरी से रिच बनना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. सी रिच डैड पुअर डैड में एक मैट्रिक्स है, ESBI. ई मतलब एम्प्लॉयड, आप जॉब कर रहे हो. तो जॉब में क्या होता है, यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी. आप 8 घंटा दे रहे हो, आपको वो कंपनी 8 घंटे का पैसा दे रही है. सो द कंपनी इज़ बाइंग योर टाइम एंड पेइंग यू मनी, राइट. आप कितना भी अच्छा कर लो, आपकी हर साल इंक्रीमेंटल ग्रोथ उतनी होती है. ठीक है, अभी 5-7 सालों में ये ESOPs का कल्चर आया है, वेर इन यू नो इफ़ यू हैव ESOPs यू कैन बिकम मल्टी मिलियनर्स ऑल्सो. बट अगेन लुक एट दैट, यू हैव टू बी इन 0.1% ऑफ दैट एम्प्लॉई सर्कल, राइट. हर जन को तो ESOPs नहीं मिलता है. तो आप ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत यूनिक हो, बहुत लॉन्ग टर्म से रहे हो, बहुत वैल्यूडेशन किया तो आपको ESOPs मिलेंगे. तो उनकी बात आप छोड़ दो. अदरवाइज नॉर्मली एम्प्लॉयज़ सैलरी से लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं बना सकते हैं. वो उतनी वेल्थ जरूर बना सकते हैं कि उनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं. बट आउटसाइज वेल्थ जो हम बात करते हैं 500 करोड़ 1000 करोड़ जो बनाया, इट कैन ओनली कम बाय बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स. सो फर्स्ट वाज E, देन सेकेंड इज सेल्फ एम्प्लॉयड, विच मीन्स यू आर नॉट वर्किंग फॉर दस, यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, बट स्टिल यू आर ट्रेडिंग योर टाइम ओनली. इफ़ आई एम ए डॉक्टर, मैं 10 घंटा काम कर रहा हूँ और 10 घंटे के पैसे मिले. बट नाउ यू डिसाइड योर वर्क आवर्स, वर्क प्राइस. 1 घंटे का मैं 10,000 चार्ज करूँगा, ये 1 लाख. डॉक्टर्स हो तो आपको मिले, बट स्टिल अगर आप 10 दिन हॉलीडे पे गए तो आपकी 10 दिन का मीटर बंद हो गया, राइट, बिकॉज आपने सर्जरी नहीं की तो आपने नहीं किया. सो आई गिव यू क्लासिक एग्जांपल, डॉक्टर नरेश त्रिहान हु रन्स मेदांता हॉस्पिटल. ही इज़ अ कार्डियक सर्जन, वन ऑफ द इंडियाज़ बेस्ट कार्डियक सर्जन. तो जब वो सर्जरी करेंगे उनको हर सर्जरी का मान लो 5 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया मिलेगा, राइट. बट अगर 10 दिन सर्जरी नहीं की तो वो पैसा नुकसान हो गया उनका. ही क्रिएटेड मेदांता हॉस्पिटल, recruited 500 doctors under him who are bypass surgery. Let's say I'm just giving you a example. और वो मेदांता कंपनी लिस्टेड हो गई अभी. तो आज वो बिलियनर बन गए हैं. ही इज़ वर्थ 10,000 करोड़, राइट. तो बाई डॉक्टर बन के वो कभी 10,000 करोड़ नहीं कमा सकते थे, बट अब उन्होंने उसको लिस्टिंग कर लिया, वैल्यूएशन क्रिएट कर ली. सो द हाइस्ट वेल्थ कैन बी क्रिएटेड बाय बिजनेस ओनर्स. मैं अपने बिजनेस में कमा रहा हूँ, या फिर आई एम एन इन्वेस्टर एंड आई इन्वेस्ट इन 25 डिफरेंट बिजनेसेस, राइट. सो the highest amount of wealth anybody can create in the world is through its own business. Elon Musk ने सारा पैसा टेस्ला से बनाया है, स्टीव जॉब्स ने एप्पल से बनाया है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट से बनाया है, राइट. डीमार्ट, राधा किशन जी दमानी, bulk of wealth he has made through DMart, and of course by investing. So bulk of your capital which you invest in markets will come from your business. आपने बिजनेस से बना तो लिया, अब आपको उस पैसों को काम पे लगाना है. दैट इज़ वे यू हैव टू पुट इन अदर बिजनेसेस, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे वो लिस्टेड एक्विटीज़ हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो. यू हैव टू पुट बैक इनटू कंपाउंडिंग एंड दैट विल सेट द बॉल रोलिंग. तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिंग मेगा वेल्थ.
But let's say for a salaried employee, right? How should they look at it कि मैं comfortably एक corpus बना सकूँ? Say whatever I want to 10 crores, 20 crores. How should a salaried employee approach 10-20 करोड़ बन सकते हैं। सबसे पहला मंत्र स्टार्ट रेडी। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ईजी है बनना। आप जितना लेट करोगे उतना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो पहला तो मैंने बताया शुरू जल्दी करो। एक सर्टेन कॉर्पस आप रेगुलरली डालते रहो और जितना लंबा कंपाउंडिंग आप रखोगे ना उतना आपका ईजी है वो कॉर्पस बनाना, राइट? तो जो 20 करोड़ की आप बात करो 10 करोड़, वो आई एम अज्यूमिंग इट इज़ एक्चुअली योर रिटायरमेंट मनी, राइट? बाकी तो पैसा आपका यूज़ हो जाएगा, जब बच्चों की पढ़ाई आएगी तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, घर लेना तो खर्चा। बट वो जो 10-20 करोड़ आप रिटायरमेंट का सोच रहे हो, उस पैसों को आपको जब तक रिटायरमेंट नहीं आए उस पैसों को टच नहीं करना है। एंड दैट इज़ वाई वी कीप फोकसिंग ऑन बिल्ड, हैव 3-4 गोल्स, लिंक योर इन्वेस्टमेंट, ईच फंड, ईच गोल। जो रिटायरमेंट का पैसा है ना, चाहे कुछ भी हो जाए उसको तोड़ना मत। घर 2 साल बाद खरीदना पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक घर का पैसा नहीं होता है आप घर नहीं बनाओगे। ऐसा नहीं कि अब मैं रिटायरमेंट का पैसा तोड़ के इसमें डाल देता हूँ। जिस दिन आप में ये डिसिप्लिन आ जाएगा ना तो आपका रिटायरमेंट का भी 20 करोड़ बन जाएगा। क्योंकि वो 10-15 साल बाद वो जो कंपाउंडिंग होगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि 5 साल पहले 10 करोड़ था और 5-6 साल बाद वो 20 हो गया। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट इंटरप्ट द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग। Usually, people say that after you've made a certain wealth, right? That incremental money does not change your life significantly. So, how do you think about that? इट्स वेरी लॉजिकल। आप सडनली 20 साल बाद अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो, एंड आई क्लासिकली गिव माई एग्जाम्पल। आई एम ए मिडिल क्लास, आई स्टिल बिलीव कि आई बिहेव लाइक मिडिल क्लास, राइट? भले ही वेल्थ कितनी हो जाए और ये 100 करोड़ का नंबर जो हमने टारगेट किया वो हो भी जाएगा, इट विल नॉट सब्सटैंशियली चेंज माई दिस थिंग, बिकॉज आप खाना वही खाओगे, आपकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है वही होती है। तो एक पॉइंट बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड अ पॉइंट इज जस्ट नंबर्स, एंड नंबर्स नेवर एंड। बॉब मार्ली का ये कोट है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है श्रद्धा, मेनी इन्वेस्टर्स व्हेन वी मीट ना, दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप, व्हेन टू स्टॉप। दे आर इन द रैट रेस, एंड आई ऑल्सो हर्ड वंडरफुल सेइंग दैट इन द रैट रेस ओनली द रैट्स विंस, राइट? डू यू वॉन्ट टू बी दैट रैट? मतलब मैं हमेशा इन्वेस्टर को बोलता हूँ, आपको क्यों भागना है, आपको किसको दिखाना है? बी रियलिस्टिक विद योर सेल्फ कि मुझे अगर ये हो जाएगा आई विल एन्जॉय माई लाइफ। सो जब वो गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, हम इन्वेस्टर्स को पुश करते हैं, सर आप खर्चा करो। आप वी ओनली डोंट वांट टू सी दिस CAGR ऑन पेपर, वी ओनली डोंट वांट टू सी पेपर वेल्थ, वी वांट यू टू एन्जॉय दिस वेल्थ इन योर लाइफ टाइम। वी टेल आवर इन्वेस्टर्स वी डोंट वांट यू टू डाई रिच, वी वांट यू टू लिव रिच। सो हम लोग इन्वेस्टर्स को पुश करते हैं, सर हॉलीडे जाओ, वाइफ के साथ जाओ, ट्रैवल करो, बकेट लिस्ट, एवरेस्ट बेस कैम्प, जो भी आपके दिमाग में था, स्काई डाइविंग, राइट, 5 स्टार विला। अगर आपके पास आज पैसे हैं, आपने मेहनत की है उसके लिए, गो एंड एन्जॉय, स्पेंड ऑन योर सेल्फ, राइट? तो लिव द लाइफ विच यू वॉन्टेड टू लिव। सी पैसा श्रद्धा बहुत, देर आर थिंग्स मनी कांट बाय, बट यू नो वॉट मनी कैन गिव यू? मनी कैन गिव यू चॉइसेस। Money can make buy time for you. अगर आपके पास बहुत पैसा है, आज आपको ऑफिस नहीं जाना तो नहीं जाना, मुझे सडनली हॉलीडे पे जाना है, पैसा है तो आपको मनी हैज़ द पावर टू allow you to spend time with whom you want, how long you want, where you want, when you want, without ever having to worry कि लोग क्या खाएंगे। तो so you need to know that hard stop कि मुझे कहाँ रुकना है, राइट? बाय दैट हार्ड स्टॉप आई डोंट मीन कि अगर मेरा 100 करोड़ हो गया तो कल से मैं घर पे बैठ जाऊँगा। दैट्स ऑल्सो नॉट राइट, राइट? यू शुड वर्क, बट यू शुड वर्क विदाउट स्ट्रेस। यू आर वर्किंग बिकॉज यू लव वर्किंग, यू आर वर्किंग बिकॉज योर वर्क क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। मनी दैट यू अर्निंग इज अ बाई फैक्टर। सो टुमारो इफ आई मेक 100 करोड़, उसका मतलब ये नहीं कि आई विल सिट एट होम, आई विल कंटिन्यू डू वॉट आई बिन डूइंग ऑल अलॉन्ग, राइट? इनफैक्ट आई विल मेक इट इवन मोर पर्पजफुल देन, राइट? सो ये 100 करोड़ इज जस्ट अ नंबर टू मी। उसके बाद ये रेस नहीं होनी चाहिए कि 100 का 200 करोड़ और 200 का 500, बिकॉज ये कभी नहीं होगा। और आपसे ऊपर हमेशा 50-500 लोग रहेंगे, आप कभी भी नंबर 1 नहीं पहुंच पाओगे। आई मीन इट इज़ वेरी रेयर कि आप इलॉन मस्क बन सकते हो, एंड वो एक इलॉन मस्क है, उसके ऊपर कोई नहीं है आज के डेट में। बट वो नहीं हो सकता, मतलब फॉर लार्ज नंबर ऑफ। आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस इज जस्ट अबाउट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यार आप नहीं बनने वाले हो मिलियनर, बी ओके विद दैट फैक्ट, नो व्हाट्स योर डिसेंट अमाउंट,
Like हर कोई यार 100 करोड़ बनाना है, like we say it in so much passing, but realistically सोचेंगे तो do we really need it? What is that comfortable amount? Just think of it and work backwards from it. In that process of running after 100 crores, 50 crores, you are not living your life. You are not enjoying your life. You are, letting go those precious moments. आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे हो, आप सब, और एक दिन वही पैसा आपको वापस यूज़ करोगे हेल्थ कमाने में, आप डॉक्टर्स को दोगे, आप बिकॉज यू डिडंट कीप. सो आई सेड मेक योर प्रायोरिटीज वेरी क्लियर. सो मोस्ट पीपल आई हैव सीन, अनफॉर्चुनेटली जब हम मिलते हैं, द ओनली थिंग्स विच दे आर रनिंग आफ्टर इज रिटर्न्स. अरे हाईएस्ट रिटर्न्स किस में मिलेगा, मैक्सिमम वेल्थ. अरे सर बनाना क्यों है इतना, आपको ज़रूरत क्यों है, वो तो बताओ. द वाई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नीड्स टू बी एड्रेस. हाउ कैसा बनेगा, क्या रिटर्न्स आएंगे, इज़ वेरी वेरी सेकेंडरी. द बिगेस्ट क्वेश्चन विच यू शुड बी आस्किंग योर सेल्फ इज़ वाई आई नीड सो मच वेल्थ, वाई आई नीड 100 crores. In my case 100 crores was this dream to become one idiot, to prove to the world कि एक कॉमन आदमी बना सकता है. इट्स नॉट दैट आई नीड 100 crores. शायद 10 करोड़ भी मेरे लिए बहुत है, राइट. बट ये एक टारगेट था. तो बट नॉट ऑल पीपल नीड to have this kind of targets. Yeah, agree. I think a lot of introspection is needed ki, and with that being said, I 100% agree, you should make 100 crores if you want to, and you can make. I'm a strong believer in that. Yeah, but yeah, if you know why you want to make it, and are you just chasing what everyone else is? Who you really are as an investor and as an individual also. What are your goals, basically? No, and if you're creating just to show off others, I think then you're going on a very different wrong track. Finally all you will get is misery, because world को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. there's a book written, एक नर्स थी जो टर्मिनल इलनेस के पेशेंट रहते हैं, जो 6 महीने में मरने वाले हैं. तो उनका वो इंटरव्यू ले रही थी कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट इन योर लाइफ, एंड शी वुड से द फर्स्ट रिग्रेट फॉर मोस्ट पीपल वाज आई विश आई हैड लिव्ड द लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नॉट वॉट अदर्स एक्सपेक्ट ऑफ मी, राइट. मैंने वो ज़िंदगी जी नहीं है. मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि आप क्या सोचोगे, ये क्या सोचेंगे, और मैंने अपने खुद के लिए तो सोचा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए. तो आप किसी को भी, हर किसी को खुश नहीं कर पाओगे. द ओनली थिंग यू शुड बी वर्किंग फॉर इज़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाकी सब पेरिफेरल्स है. सोसाइटी में दिखाना, कोलीग्स को दिखाना, मीडिया में दिखाना, इट डजंट मैटर. यू विल नेवर गेट दैट ट्रू हैप्पीनेस. एंड सेकेंड, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑन दिस नोट, Naval Ravikant says, you should be rich and you should be private. If you're rich and public, your life is hell, right? But if you're rich and private, you will have, and that's why I wonder, appreciate Radhakrishnan ji Damani. मैं उनका YouTube वीडियो सर्च कर रहा था, एक भी YouTube वीडियो नहीं है उनका खुद का where he is appearing. उनके कोई इंटरव्यूज़ नहीं देते हैं, वो कोई मीडिया में नहीं जाते हैं. he is very shy, right? मतलब I really respect that person. कि be rich, be private, keep doing good work. Agree. So on that note, a last question for you. हमने म्यूचुअल फंड्स की तो काफ़ी बातें करी, बट ये एक क्वेश्चन एंड मैं हमेशा सबको ये पूछती हूँ, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन रेंटिंग वर्सेस बाइंग अ हाउस? Like I know it's a never-ending debate, but like what's your view on it? See, my views. So in many things of my life, my views are very radical and very different. I always say not necessarily I'm right or wrong. It's just what I'm comfortable with, right? So as far as renting versus buying is concerned, see, throughout my life, just try to understand, I've always lived in a rental flats. मैं हॉस्टल में भी था तो रेंट से शुरू किया. I started my rental in hostel at 950 rupees a month, Bangalore, right? तो तब से मैं बहुत जल्दी घर से निकल गया था, तो मुझे कभी ओनरशिप का एक लगा ही नहीं कि घर अपना होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन दैट माइंड सेट. नाउ आई कांट से द सेम थिंग फॉर माई पेरेंट्स. उन्होंने हमेशा अपने घर में रहा है. सडनली आप उनको महल भी दे दोगे ना, बट वो रेंट का ना, उनको नींद नहीं आएगी वहाँ पे, उनको अपना चाहिए. एंड आई रेस्पेक्ट देयर व्यूज़ ऑल्सो. बट एटलीस्ट एज फार एज आई वॉज कंसर्न, आई सेड इन मुंबई buying at early stage of your life doesn't make sense, because the prices are crazy. You don't have that kind of savings at 25-35. और अगर आपने भूल से EMI ले लिया तो आपका EMI इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे कि इसको कैसे चुकाएं. तो rather I wanted to be comfortable, and I wanted to live in a flat which was closer to my office, with an option कि every 5 years if my income goes up, do I have an option to upgrade my flat? So I started with like 1 BHK to 2 BHK to 3 BHK, and then maybe a 4 BHK someday in a very palatial building, sea view kind of thing. That has worked wonderfully for me.
राइट? बहुत लोग बोलते हैं नहीं आपके मकान मालिक आपको 2 साल में निकाल देंगे। लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 साल मैंने एक ही घर में रहा है और लास्ट में मैंने ही वो घर छोड़ा। मकान मालिक तो बोल रहे थे कि आप कंटिन्यू करो उसमें, राइट? बट मैंने बोला सर नहीं, अब मुझे अपग्रेड करना है। सो एज लॉन्ग एज यू पेइंग रेंट ऑन टाइम, यू आर अ गुड टेनेंट, एवरीबडी वुड लाइक टू हैव अ गुड टेनेंट। तो वो जो होता है वो नहीं है। और सपोज आप 5 साल बाद घर चेंज भी करते हो तो 15 दिन का हैसल होता है जो मूव इन मूव आउट करना, राइट? बट आपने एक बार घर खरीद लिया ना तो लाइफ लॉन्ग यू आर स्टक मोस्टली इन दैट हाउस। यार एक ही ज़िंदगी मिली है तो यार कुछ तो थोड़ा नया चीज़ देखें, एक्सपेरिमेंट करें। सेम दीवारें सेम चीज़, आई मीन बहुत लोग बोलते हैं नहीं ये इमोशनल है वगैरह है। आई रिस्पेक्ट दैट, आई हैव नो अगेंस्ट, बट फॉर मी आई थिंक you should be able to upgrade if life gives you an option. Again many people tell me कि वो तो हम घर खरीद के भी अपग्रेड कर सकते हैं, बट घर खरीद के इतना ईजी नहीं होता है। Interiors are expensive as well. वो भी है, चलो पैसा भी होता है ना, बट इतना ईजी नहीं होता। घर खरीद आपको पहले वो बेचना पड़ेगा, फिर दूसरा खरीदना पड़ेगा, राइट? उसमें बहुत बैंडविड्थ चला जाता है। बट रेंटल्स है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया, दूसरा घर पसंद आ गया, पैकर्स एंड मूवर्स को बुलाया, अब तो सारा काम वो खुद कर देते हैं। तो थोड़ा सा हैसल में, बट आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। दिस इज़ वर्क वंडरफुली फॉर मी। एंड अगेन इन बॉम्बे यू आर नॉट जज बाई आप रेंट पे रह रहे हो बाइंग पे, तो कोई किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेरे पड़ोसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं खुद का है कि क्या है, बट छोटे सिटीज़ में ये फ़र्क पड़ता है। तो अगेन आई वुड लाइक टू लीव दिस विथ यू कि वॉट इज़ कंफर्टेबल विथ यू। अगर आप घर खरीद सकते हो, कैपेसिटी है, इट डजेंट अफेक्ट योर अदर गोल्स मच, तो आप खरीद लो। बट अगर आपको लगता है यू आर स्ट्रेचिंग टू मच एंड जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू प्लीज योर सोसाइटी, नेबर्स, and you're going overboard, and if it costs you your happiness, it is not worth doing. Because you wanted to prove to others, I think that's a wrong move. You will never be happy from inside. ये मेरी learning रही है। Awesome. So we would like to end on this note, and thank you so much for giving us your time today. I've learned quite a lot about money, mutual funds, and I'm sure our viewers will also get a lot of value out of this. Thank you so much. Thank you. The pleasure is all mine. And I hope कि इसमें से अगर वो 1-2 बात को भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले, आई थिंक आवर पॉडकास्ट वुड बी आई विल फील कि दैट दिस वाज अ ग्रेट सक्सेस देन। थैंक यू वंस अगेन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.